ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਖਤੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਚੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸੇਠ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਕੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਇਧਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਧਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਾਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਸੀ। ਗਾਂ ਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਗਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਛੁਪ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ। ਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ। उसने गां ने चोर ने किया भैया, चोर भैया, भाई साहब आप जो विचार कर रहे हो ना कि तिजोरी में से चोरी करने के चक्कर में हो, तो ये गलती से भी कर मत लेना। पिछले जन्म मैंने भी ऐसे ही किया था। पिछले जन्म जी मैंने सेठ जी से पैसे उधार लिए, और मैंने बोला मैं अगले जन्म में पैसे दूंगी, और अब अगले जन्म में मैं सेठ जी के यहाँ पर गाय के उसमें आई हूँ जन्म में। और मैं जब तक जहाँ मर्जी चली जाऊँ, मेरे को ना, मैं कमज़ोर हूँ, कोई मुझे अपने पास रखता ही नहीं, और मुझे सेठ जी खूंटे से भी नहीं बांधते, और मैं घूमते घूमते जहाँ मर्जी चली जाऊँ, कोई मुझे चारा भी नहीं देता, और ना ही मुझे अपने पास रखता है, क्योंकि मेरा बिल्कुल शरीर इतना कमज़ोर, इतनी मैं वो, कि मुझे आखिर सेठ जी के घर ही आना पड़ता है। और मेरे को यहाँ आके यहाँ चारा खा के रोज़ रोज़ सेठ जी को दूध देना है। और जब तक मैं पिछले जन्म का पूरा कर्जा उतार नहीं दूंगी, तब तक मेरे को ये दूध दे दे के सेठ जी का पूरा अपना कर्जा उतारना है, क्योंकि मैंने जितने पैसे लिए थे उतने पैसों का मुझे ब्याज समेत सारा दूध वापस करना पड़ेगा। तो कहता है वो कहता है अच्छा। कहती है मैं पिछले जन्म मैंने जब लिया था कर्जा, इस जन्म में गाय बन के उतार रही हूँ। और गलती से भी, भूल से भी ये मत कर लेना कि तुम सोच रहे हो कि सेठ जी की तिजोरी साफ कर लूँ या उनका दिया हुआ पैसा अगले जन्म में किसने देखा। मैंने ये सब करके करके देख लिया। कर्जा तो कर्जा ही होता है, जैसे मर्जी तुम किसी का भी कैसे भी खोलो, आखिर तुम्हें कभी ना कभी किसी भी रूप में किसी भी जन्म तुम्हारे ऊपर वो जो कर्जा चढ़ा उसको तो उतारना ही पड़ेगा, और उतारना पड़ता ही है। तो मैं वो उतार रही हूँ, तो तुम गलती से ये काम मत कर लेना। तो तुम्हें भी कोई ना कोई जन्म दोबारा लेके सेठ जी के घर में कुत्ता बनना पड़ सकता है, या कुछ भी बनना पड़ सकता है, और पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें कर्जा उतारना पड़ेगा। वो तो
एकदम से चोर हैरान हो गया, परेशान सा हो गया कि मैंने 5 लाख रुपए लिए और मेरे को तो अगले जन्म का लिख के आया हूँ। अंदर जाके उसने बोला, खटखट 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 दरवाजा खटखटाया, सेठ जी पैसे वापस करने आया हूँ। कहता ये लो 5 लाख मैंने अभी आपसे लिए थे, मेरा खोलो और मेरे ये 5 लाख रुपए मैंने आपको वापस कर दिए और मेरा हिसाब पूरा हुआ। मैंने अब आपका कोई कर्जा नहीं देना। उस पर लिख दो कि इस व्यक्ति ने आके 5 लाख रुपए जो लिए थे वो वापस कर गया है। अब मैंने आपका कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, तो मेरी मेरी तरफ से मेरा कर्जे की मुक्ति हुई। तो इस कहानी का मेन एंड ये निकलता है सर कि जितना मर्जी आप छल कपट धोखे से किसी भी रूप से किसी से भी कुछ ले लोगे, आखिर आपके सर पे चढ़ जाएगा। और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी जन्म में, चाहे बच्चा बनना पड़े, चाहे घर का नौकर बनना पड़े, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े, हमको वो उसका सारा कुछ वापस करना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में हम किसी का लेके चुरा के किसी तरीके से करके अपना पेट नहीं भर सकते। हमें अपना ही अपने 10 नाखूनों की कमाई से ही उसको प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी ने आपको उपहार रूप में कुछ दिया तो वो कर्जा नहीं है, आप उसको बेशक इस्तेमाल करें, या फिर आप भी किसी और को अपनी श्रद्धा अनुसार उपहार में अगर कुछ देते भी हैं तो चलो बहुत बढ़िया, ये एक किस्म से आपका दान पुण्य हो गया। उसका उसके व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा नहीं चढ़ता। लेकिन हाँ, अगर किसी ने बुरी नीयत से, चोरी से, छल कपट से कहीं से भी हासिल कर लिया तो उसको तो वापस करना ही करना है। इस जन्म में करे, अगले जन्म में करे, उससे अगले जन्म में करे, वो कर्जा उसके ऊपर हमेशा चढ़ा ही रहेगा। किवें जी लगी भैन भराओ स्टोरी। और जाने जाने कोई भी गलती या भुल चुक हो गई हो तो बख्श लेना। और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओके।